फैक्टर्स मौजूद हैं. So that is about weathering. That weathering is a very important process, and it happens everywhere on the earth. अर्थ में हर जगह पे आपको वेदरिंग मिलेगी. जहाँ जहाँ एक्सक्यूज मी, जहाँ जहाँ पर भी रॉक्स हैं वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस आपको मिलेगा. एंड with that, weathering is the process which changes the landform, which makes up the landform, which rebuilds, rearranges landform की शक्ल को. पहले एक फॉर्म को चेंज करेगा, उसके बाद दूसरी फॉर्म उसमें इट विल ट्राई टू ब्रिंग. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. और weathering can be simply defined as the process of breakdown of rocks. Rocks के टूटने को weathering कहा जाता है. So now, if we talk about the types of weathering, we have two main types of weathering: the physical weathering and the chemical weathering. Physical weathering is also called as mechanical weathering. You can see where the pointer is blinking. Okay, so this is physical weathering, and the second one is chemical weathering. So when we talk about the physical weathering, we mean that the rocks are breaking up due to some uh, physical reasons, the reasons which are acting upon a given rock from outside. बाहर से कोई फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, या कोई मैकेनिज्म वहाँ पे हो रहा हो, फिजिकल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से रॉक्स टूट जाते हैं. जैसे हवा का चलना, जैसे कि किसी रॉक के ऊपर किसी दूसरे रॉक के आकर गिर जाना, पानी का बहना, और इसके अलावा कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट, इट मूव्स ऑन द रॉक्स, तो हमारे चलने से भी रॉक्स पर फिजिकल प्रेशर पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर. और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दरख्त बना है और उसकी रूट्स हैं जो ज़मीन पे पेनिट्रेट कर रही है. सो ड्यू टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज, रॉक्स ऑल्सो ब्रेकअप, और वो भी एक फिजिकल वेदरिंग की टाइप है. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट वेदरिंग, तो इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं रॉक्स में. फर्स्ट terminology is called as regolith. Okay, so regolith is the topmost part of the rock which undergo weathering. रॉक का वो पार्ट जो टॉप पर है और उसमें वेदरिंग होती है, तो उस पार्ट को कहा जाता है regolith. सो यू कैन सी regolith इज लेबल्ड हियर. और regolith ही वो लेयर है जहाँ पर आपको वेदरिंग का प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा, या सिंपली जिस पार्ट में वेदरिंग हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ regolith. तो जहाँ तक वेदरिंग होती है और जिसके बाद स्ट्रॉन्गर रॉक्स आ जाती हैं फर्दर बिलो द ग्राउंड, यू कैन सी द पॉइंटर. सो फर्दर बिलो द ग्राउंड वेयर the rocks are resistant, stronger हैं और ज़्यादा resist नहीं कर रहे, वो rocks कहलाती हैं bedrock. So bedrock, it is also called as the parent rock, and this is the stronger rock. ये strong होती है और ये resistant होती है, इसमें erosion नहीं होती. जबकि bedrock के ऊपर जो weak और looser rocks हैं, those those are called as regolith. Okay, so ये दो parts of rocks हैं when we talk about weathering. एक वो part जिसमें weathering होती है, वो यकीनन
ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, और एक्सपोज्ड पार्ट, और एक्सपोज्ड पार्ट के नीचे जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है, दैट स्ट्रॉन्गर पार्ट इज द बेड रॉक. So weathering, and according to weathering, a layer of rock has two main parts, the regolith and the bedrock. Regolith is that part which undergoes weathering, while the bedrock is that part which is resistant and which is stronger and which does not undergo weathering. Okay, ये दो parts हो गए हमारे. On the basis of weathering. Now, there you see, this is bedrock here, and this is the regolith over here. And then these are some of the examples of weathering, how weathering takes place. This is the tree, and the roots of that tree is also breaking the rocks. And it happens when the roots are very big and wide and strong, then uh, it undergoes weathering. Then some more example of weathering, that how weathering occurs on a flat horizontal surface, and then it can occur in vertical cliff-like features. So everywhere weathering can take place, and weathering is taking place everywhere. Okay, then, okay, so this is the definition of bedrock. It is the parent rock from which weathered, regolith, and soil develops. What happens is that everything in the system of earth happens in the form of a cycle, like the beginning is the end and the end is the beginning. So जहाँ पे कहानी एक साइकिल खत्म होती है, वहीं से दूसरी साइकिल भी स्टार्ट होती है. सो बेड रॉक को हमने अभी कहा कि ये रेजिस्टेंट रॉक है और ये ब्रेक नहीं होती है. बट व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ टाइम के बाद जब रेगुलेट वेदर आउट हो जाता है और उसके बाद वो इरोड हो जाता है. वेदर मीन टूटना, और इरोड मीन जब वो ट्रांसफ़र हो जाए हवा से या पानी से या ग्लेशियर की वजह से. सो व्हेन दैट रेगुलेट और द सॉइल लेयर वो जब इरोड आउट हो जाती है तो फिर बेड रॉक एक्सपोज हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो बेड रॉक का एक ऊपरी हिस्सा वो रेगुलेट बन जाता है, नीचे एक नई बेड रॉक बन जाती है, और ये प्रोसेस होता रहता है. यही वजह है कि अर्थ को मतलब दिस इज अनदर रीजन, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द अर्थ बीइंग अ डायनामिक प्लैनेट. ओके, व्हेन द रॉक्स आर वेदर्ड अवे, तो उस टाइम पर जो पीसेस ऑफ रॉक्स बनते हैं उन पीसेस ऑफ रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट. द पीसेस ऑफ वेदर्ड रॉक, यहाँ पे लिखा है इन्होंने सैंडी अनकंसोलिडेटेड फ्रेगमेंटल मटेरियल. सैंडी है मींस इट विल बी ड्राई, स्मॉल ग्रेन साइज. अगर आपको पायरोक्लास्टिक का याद हो, सैंड का ग्रेन साइज क्ले और सिल्ट के बाद तीसरे नंबर पे छोटा, फ्रॉम द इन स्मॉलर रेंज. सो सैंडी है, अनकंसोलिडेटेड है, तो सॉर्ट आउट नहीं है, फ्रेगमेंटेड है, टूटे हुए हैं, और दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज सेडिमेंट. और पानी के साथ जो मिट्टी आती है वो भी सेडिमेंट कहलाता है. ओके, नाउ द फैक्टर्स influencing weathering process. What are the different factors which undergo which are responsible for weathering, कि जिसकी वजह से weathering ज़्यादा
होगी या कम होगी. So the first factor is rock composition and the structure के rocks किस चीज़ से मिलके बनी है, कौन से मिनरल्स हैं या कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो उस रॉक के अंदर मौजूद हैं. सो इफ़ the compounds or the minerals are brittle excuse me, तो वो easily breakable होगा. रॉक मिनरल के बीच में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो रॉक्स जल्दी वेदर आउट होंगे. एंड इफ द बेटा आपका हाथ गलती से अपने स्क्रीन में लग गया है, सम ऑफ यू. ओके, इफ द मिनरल्स और द रॉक्स आर स्ट्रॉन्गर, उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो वो रॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, मोर रेजिस्टेंट होगी और वहाँ पे वेदरिंग कम होगी कंपेयर टू द वंस वेयर द रॉक्स आर वीकर. जब हम कहते हैं वीकर रॉक्स, इट मीन्स कि जो उनके बीच में मिनरल्स हैं, उस रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं उनके आपस की बॉन्डिंग कमज़ोर है. Okay, so Sayyid Taha has lost control of his screen. Beta, please erase this doodle which has suddenly appeared on the screen. All right, thank you for that. फिर सेकेंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस वेदरिंग इज़ द क्लाइमेट, कि किस टाइप का क्लाइमेट है. क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग. इफ़ देर इज़ मोर प्रेसिपिटेशन, इफ़ द टेम्परेचर्स आर हायर, सो वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी. अगर प्रेसिपिटेशन एक नॉर्मल रेट पे है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम प्रेसिपिटेशन है, ना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर रॉक्स ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे. सेम विद द टेम्परेचर्स. High temperatures and low temperatures will affect the rate of weathering. Then तीसरी चीज़ यहाँ पर है freeze thaw cycles. कुछ इलाके दुनिया में ऐसे हैं, स्पेशली इन द मिड लैटिट्यूड्स, जहाँ पर रॉक्स के क्रैक्स के अंदर पानी जमा हो जाता है और रात में वो पानी फ्रीज हो जाता है. सो फ्रीज मीन्स जमना, एंड थॉ डे टाइम पर जब सूरज निकल आता है तो वो वाटर जो क्रैक्स में जमा हुए थे, जो जम गया था, वो पानी पिघल जाता है. सो थॉ मीन्स मेल्टिंग. सो ये जो ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल है, इसकी वजह से भी वेदरिंग पे इफेक्ट होता है. So if there is freeze thaw cycle, then it means the rocks will undergo a lot of weathering. Then subsurface water, the water present inside the surface of earth, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, जिसे हम आम तौर पे कुआं, जब हम वेल की ड्रिलिंग करवाते हैं या डिगिंग करवाते हैं, तो उस टाइम पर जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, दैट इज़ सबसरफेस वाटर. और ज़मीन के अंदर पानी जिस लेवल पे आपको मिलता है, दैट लेवल इज़ कॉल्ड एज वाटर टेबल. तो वाटर टेबल अगर बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, दोनों सूरतों में वेदरिंग ज़्यादा होगी, वेदरिंग पे इफेक्ट होगा. It should be in the mediocre level, right? How do we know about the water table here in our areas? कि आपने शायद सुना हो कि जब लोग कुआं खुदवाते हैं, तो दे से कि हाँ 200 फुट की गहराई तक ड्रिलिंग हुई है, या 100 फुट. So that 200 feet under the ground, that 100 feet under the ground actually makes up the depth of the water table. Okay, so there the term table is like that. Water table, the level of water under the ground. Okay, then next factor, the fourth one is slope orientation over here. स्लोप ओरिएंटेशन. अगर किसी रॉक पे वेदरिंग हो रही है, तो उस वेदरिंग के अंदर उसके कॉम्पोजिशन, उसका क्लाइमेट और उसके वाटर टेबल के अलावा जो अगला फैक्टर है वो उस स्लोप का ओरिएंटेशन है. व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट स्लोप? आइदर द स्लोप इज़ फेसिंग द विंड, द अपकमिंग विंड, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो अगर उस डायरेक्शन पे आती हुई विंड को कोई स्लोप उस विंड को फेस कर रहा होगा, तो उसके अंदर
वेदरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह इफ़ द स्लोप इज़ फेसिंग द राइजिंग और द सेटिंग सन, सूरज के ट्रैक पर, यानी जिस ट्रैक पे सूरज चलता है, द सन runs in the east west track, so over there as well it will affect the weathering rate. ठीक है, so that is slope orientation. And सो स्लो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ पर ये डायरेक्शन होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस वक्त पड़ता है जब वो प्रीवेलिंग विंड को फेस करे। प्रीवेलिंग विंड्स यानी जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो करती है, जैसे हमारे यहाँ कराची में हम कहते हैं वेस्ट ओपन हाउसेस, दे हैव मोर विंड। सो कराची में अगर कोई स्लोप वेस्ट फेस पर है, टू बी प्रिसाइज इट इज़ साउथ वेस्ट, सो साउथ वेस्ट पर अगर कराची में है कोई रॉक, तो इट विल अंडरगो मोर weathering. Then next feature which affect weathering is vegetation. किस टाइप की वेजिटेशन किसी रॉक में मौजूद है तो वहाँ पर वेदरिंग रेट पे अफेक्ट होगा। अगर ग्रास है तो इफ़ एनी रॉक और एनी सरफेस हैज़ ग्रास इन इट, तो वहाँ पर वेदरिंग के चांसेस कम होंगे। ओवरऑल वेजिटेशन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वेदरिंग except for very big vegetation like very big trees जिनकी roots जो हॉरिजॉन्टल रन करती हैं या बहुत मोटी रूट्स होती हैं, तो वो रूट्स वेदरिंग कॉज करती है। अदर देन दैट वेजिटेशन प्रिवेंट्स वेदरिंग, स्पेशली इरोजन। वेदरिंग हो भी जाए तो वो इरोड आउट नहीं होने देती। सो with the roots of plant it can happen. All right, here this is an example कि how vegetation is affecting the weathering process or vegetation is causing the weathering. Here you see ये एक दरख्त है over here, and this is the root and it's quite thick, so this is causing weathering here. Okay, now the types of physical weathering. So physical weathering is also called as mechanical weathering, and physical weathering is further divided into 3 मेन प्रोसेस। इसके अलावा भी इसमें है, लेकिन 3 फिजिकल वेदरिंग की 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉस्ट एक्शन, उसको फ्रीज थॉ एक्शन भी कहते हैं या फ्रीज थॉ साइकिल इसमें होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। देन सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन, एंड देन थर्ड वन इज़ प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग. So these are the 3 main types of physical weathering. So let's discuss frost action, the freeze thaw cycle or the freeze thaw action. Just a while ago I have told you that there are some areas in the world where humidity rate is high, वहाँ पे humidity ज़्यादा है और उसकी वजह से उन इलाकों के अंदर रात के टाइम after sunset the temperature drops and the temperature drops up to freezing level of water, के पानी वहाँ पर रॉक्स के क्रैक्स में, पहाड़ों के अंदर या रॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं जिनकी डेप्थ हार्डली 1 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर की डेप्थ वाले छोटे छोटे क्रैक्स, उन क्रैक्स पर पानी जमा होता है। एंड नाइट टाइम टेम्परेचर क्योंकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के करीब चले जाते हैं, तो वो पानी जो वहाँ पे उन क्रैक्स के अंदर जमा होता है, दोज वाटर इनसाइड द क्रैक दे फ्रीज एट नाइट। और पानी की एक प्रॉपर्टी है कि फ्रॉम 4 डिग्रीज टू 0 डिग्री, जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री पे चला जाए और वहाँ से वो फर्दर जब ड्रॉप होता है
At that time, water, instead of shrinking, it expands. जब फ्रीज़र में नेस्ले वाली जो पानी की बॉटल है वो हम फ्रीज़र में जब बर्फ़ उसमें बनाते हैं तो दैट बॉटल बिकम्स वेरी स्टिफ एंड स्लाइटली इट्स लाइक इट बिकम्स टाइट. और फिर कहते हैं कि जब आप किसी बर्तन में पानी जमाएं तो उसको थोड़ा सा ऊपर से खाली रखें. दिस इज़ बिकॉज द वाटर एक्सपैंड्स व्हेन इट्स अबाउट टू फ्रीज. फ्रीज होने से थोड़ा पहले पानी एक्सपैंड करता है. तो यहाँ पर इन इलाकों में जहाँ पे क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में जब पानी फ्रीज हो रहा है तो यकीनन वो एक्सपैंड हो रहा है. एंड व्हेन द वाटर इज एक्सपैंडिंग इट्स पुटिंग प्रेशर ऑन द एजेस ऑफ दोज क्रैक्स. उन क्रैक्स के एजेस पर प्रेशर पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर द रॉक्स बिकम वीकर. अब सुबह हुई, सूरज निकला और फिर वो पानी क्या होता है जो बर्फ़ बन गई थी, दैट दैट आइस इट थॉज. थॉज मीन्स मेल्ट, इट मेल्ट्स. अब वो पानी पिघल रहा है. सो उसके पिघलने की वजह से जो प्रेशर रात भर उस रॉक पे पड़ा था वो प्रेशर एकदम से रिलीज़ हो गया. अगली रात आई, दोबारा से पानी जम गया, प्रेशर पड़ा रॉक्स पे, उसके बाद वो दोबारा से अगले दिन सुबह थॉ हो गया. सो दैट फ्रीज थॉ साइकिल puts pressure on the rocks and weaken the rocks, and when the rocks are weakened then the rocks break, and when the rock break it is weathering. Okay, so due to frost or due to ice, जब रॉक्स कट रही हैं, जब रॉक्स टूट रही हैं तो उसको फ्रॉस्ट वेजिंग भी कहा जाता है. इट्स द सेम थिंग. फ्रॉस्ट एक्शन कहें, फ्रीज थॉ एक्शन कहें या फ्रॉस्ट वेजिंग कहें, बात एक ही है, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट करके ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. कि फ्रॉस्ट वेजिंग, वेज मीन्स टू कट. सो बर्फ़ से जब कटे, फ्रॉस्ट वेजिंग. सो these are common in humid microthermal climates. पिछले सेमेस्टर में कॉपेंस क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी, वो बिल्कुल लास्ट के टॉपिक्स थे, तो आई वंडर बहुत से लोगों ने शायद उसे छोड़ दिया होगा चॉइस में. सो दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको टाइप डी क्लाइमेट कहा जाता है. वहाँ पर आपको ये फ्रॉस्ट एक्शन मिलते हैं. So here you can see some of the examples of weathering, कि किस किस फॉर्म में वेदरिंग होती है. बड़े रॉक्स टूट रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर मीडियम साइज़ के. सो वेदरिंग टेक्स प्लेस इन ऑल लेवल्स. अच्छा, अभी हमने बात की फ्रॉस्ट एक्शन की, फ्रीज थॉ साइकिल की. नाउ सेकंड टाइप इज़ सॉल्ट वेदरिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ. So the frost action takes place in humid microthermal areas जहाँ पर ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर रात के टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट तक जाता है. उन इलाकों में फ्रॉस्ट एक्शन है. बट देन देर आर सम एरियाज विच आर ड्राई. उन ड्राई एरियाज के अंदर फ्रीज थॉ साइकिल जैसा ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ. वेयर व्हाट हैपेंस कि दुनिया में जितना भी पानी है, एवरीवेयर वी डू नॉट हैव प्योर H2O एनीवेयर. उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर हमेशा. इवन द वाटर विच वी ड्रिंक हैज़ several minerals in it. So in an area which is dry, the water evaporates readily. पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. ख़ास तौर पे दोबारा से वही बात करेंगे, रॉक्स के क्रैक्स के अंदर जहाँ पानी जमा हो रहा है वो पानी इट्स फुल ऑफ मिनरल. क्योंकि जाहिर है एक रॉक्स में से रॉक के क्रैक में जब पानी है तो उसने रॉक्स के मिनरल भी अपने अंदर डिज़ोल्व किए होंगे. और सबसे ज़्यादा जो रेडिली डिज़ोल्व होता है वो सॉल्ट है, NaCl. So when the water evaporates, it leaves behind
द सॉल्ट, और वो सॉल्ट रॉक्स के क्रैक में क्रिस्टल की फॉर्म में रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है. सो दैट सॉल्ट क्रिस्टल इज सॉलिड एंड दैट सॉल्ट क्रिस्टल पुट्स प्रेशर ऑन द रॉक्स. यहाँ पर दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी की वजह से, हीट ऑफ द सन की वजह से पानी इवेपोरेट हुआ. रात के टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल आ जाए तो क्रैक्स में दोबारा से हल्का फुल्का वो जो क्रिस्टल्स बने थे उसमें दोबारा से मॉइस्चर आ जाता है. दिन के टाइम पे वो मॉइस्चर दोबारा इवेपोरेट होता है. तो ये कंटिन्यूस साइकिल के सॉल्ट क्रिस्टल का बनना और रात में हल्का सा वेट हो जाना. सो दैट cycle also contributes in weathering, and it's called as salt crystal growth, and it is also called as salt weathering due to evaporation of water in dry and warm regions. Here is an example of weathering in a cliff. इस पूरे स्टोन में कहाँ पर वेदरिंग हो रही है? जहाँ पर जॉइंट है या फ्रैक्चर है. अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग में सबसे पहला पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. तो अगर रॉक्स पे जॉइंट्स होंगे तो जॉइंट्स आर द वीकर पॉइंट्स फॉर वेदरिंग. तो ये वीक पॉइंट है, ये एक सैंडस्टोन है, डिफरेंट टाइप की स्टोन है, देन ये शेल है. दीज बोथ आर सेडिमेंट्री रॉक. तो इनके बीच का जो जॉइंट था यहाँ पर वेदरिंग हुई और फिर एक ये निश बन गया. दिस इज कॉल्ड एज निश. Excuse me. Okay, then the third process of physical weathering is pressure release jointing. So pressure release jointing is that process of weathering where the physical action is taking place from under the surface. If you remember the isostasy कि ज़मीन बल्ज होती थी क्योंकि ज़मीन के अंदर प्लूटन एक्यूमुलेट होता था. What is Pluton? When the magma intrudes into the rocks. जब मैग्मा अपवेल करता है तो या तो वो एक्सट्रूड करता है यानी सरफेस के ऊपर आ जाता है या फिर वो सरफेस के अंदर क्रैक्स में जमा हो जाता है. सो व्हेन इट इज accumulating when it is accumulating inside the rocks under the ground, then it becomes Pluton. और जब Pluton solidify होता है तो it puts pressure on the rocks above. थोड़ा सा बल्ज कर देता है सरफेस को. फिर थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि दुनिया में ये साइकिल कंटिन्यूसली होता रहता है, वही बात कि डायनामिक प्लैनेट है. सो व्हेन द प्लूटन इज फॉर्म्ड एंड द लैंड हैज बल्ज्ड अप, तो थोड़े टाइम के बाद उस लैंड के ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा या ज़मीन के अंदर वो प्लूटन ज़रा सा सिंक करेगा. तो जो फीचर हल्का सा बल्ज आउट हुआ था वो दोबारा से फ्लैटन हो जाएगा. तो बल्जिंग और फ्लैटनिंग कंटिन्यूस बल्जिंग और फ्लैटनिंग की वजह से कि वो उभर रहा है और फिर उभरी हुई सरफेस दोबारा से सीधी हो रही है, फिर उभर रही है, फिर सीधी हो रही है. उसकी वजह से ज़मीन में प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग होती है कि प्रेशर बना और प्रेशर रिलीज हुआ तो शीट्स की फॉर्म में ज़मीन पर डिफरेंट फीचर्स बन जाते हैं या इरोजन हो जाता है. सो दिस फिगर ओवर हियर, दिस वन जहाँ पर मेरा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, ये प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग की वजह से इतने बड़े बड़े रॉक्स इस तरह से अलग हो जाते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग. When the rocks get cracked up, here, this is pressure release jointing.
फिगर ए के अंदर, और यहाँ पर भी प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग आपको नजर आ रही है। Okay, so these are the three main types. Okay, there's one terminology left. So when due to release and buildup of pressure, जो surface है वहाँ पर rocks breakup हो रहे हैं in the form of large sheets, बड़ी बड़ी स्लैब्स की फॉर्म में, जैसे अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन में दिखाया लाइक पिक्चर के अंदर। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज शीटिंग। शीट्स की फॉर्म में वेदरिंग हो रही है। द rocks are weathered as thin slabs or sheets of rocks, और कभी कभी प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग की वजह से रॉक्स की जो एजेस होती हैं वो पॉलिश आउट हो जाती हैं, यूं जैसे किसी ने उसे घिस दिया हो। सो दैट is called as exfoliation dome, as you can see here, this exfoliation dome. Okay, this was about physical weathering, and then next type of weathering is chemical weathering. जब rocks का nature change हो जाए, जब rocks के अंदर permanent chemical change आए और उस permanent chemical change की वजह से जब rock टूटे, so that is called as chemical weathering. और chemical weathering की कुछ types हैं, hydration and hydrolysis, जिसमें water involve होता है, and then we have oxidation. Here it is. There you can see my blinking pointer. Oxidation. Then we have carbonates, dissolution of carbonates. So these are some of the main types of chemical weathering, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया फिजिकल वेदरिंग और उसकी सब टाइप्स को।